اب میں نشہ کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ کا سوشل بائیکاٹ یہ آخری راستے ہمارے لیے، لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، خدا کے لیے میرے بھائی، مرے گا، جلدی مرے گا، سسک سسک کے مرے گا، تباہ ہو کے مرے گا۔ نشہ پھیپھڑے خراب کرے گا، نشہ کینسر میں مبتلا کرے گا، نشہ تیرا خون سکھا دے گا، نشہ تجھے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، نشہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا، نشہ تیری کڈنیاں خراب کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نشے سے توبہ کر لو۔ ایک تو تم بیمار پڑو گے، سسک سسک کے مرو گے، اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ او نشہ کرنے والے میرے جوان، اگر تو نشہ کرے گا تو تیری بہن کے جہیز کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے، اگر تو نشہ کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے، اگر تو نشہ کرے گا تو تیری ماں کی پرورش کون کرے گا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لت میں گرفتار ہو گئے، نہ وہ کمانے کے قابل رہے، نہ وہ کھلانے کے قابل رہے، وہ بوجھ بنتے چلے گئے، بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے۔ او نشہ کرنے والے میرے نوجوان بھائی، ہو سکتا ہے جب تو کمائے گا نہیں، تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ او بے غیرت جوان، کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھونٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے، اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، اس نے تجھے بولنا سکھایا۔ ہاں ہاں، وہ دھوپ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا، تجھے بڑھاتا تھا۔ جب تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بچہ جوان ہوگا اسائیں پیری بنے گا۔ لیکن اے میرے جوان، تو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے، تو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے، بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے، جب تو نشہ کر رہا ہے، تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانگتے ہیں، نشیڑی کے، جس نشیڑی کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں، ان کو لوگ کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ اسی کا لڑکا نشہ کرتا ہے، اسی کا لڑکا موبائل چراتا ہے، اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اور یاد رکھنا، نشہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو نشہ کرنے والے شادی شدہ ہیں، اگر تم نشہ کرتے ہو، کماؤ گے نہیں، تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی، اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے، سب برے نہیں ہوتے، لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، جب تمہارے بچے اسکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کا بچہ آیا ہے۔ تمہارے بچے ہر لمحہ جئیں گے، ہر لمحہ مریں گے، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، اپنی بہنوں پہ رحم کرو۔ یاد رکھنا، قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی، جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت کی چکیوں میں پسنے والے۔ سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن سب کو صبر بھی تو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے قدم بہکتے ہیں۔ اگر قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے تو اس میں ان ناکارہ بھائیوں کا بہت بڑا رول ہے جو بوجھ اٹھانے کی بجائے گھر پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں۔ کل انشاءاللہ 24 ستمبر کی صبح اہلیان مالیگاؤں کے لیے ایک نئی صبح ہونی چاہیے۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے، کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے، کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی
अज़ा से पैदा। ऐ मेरी कौम के जवान, तू ही कभी खालिद था, तू ही कभी तारिक था, तू ही कभी अली अकबर था, तू ही कभी इमाम कासिम था, तू ही अल्लाह अकबर। कौमों की जुल्फें, जब तकदीर की जुल्फें जब बिखर जाती थी तो तू ही उन्हें नाखूने तदबीर से संवारने वाला था। अल्लाह अकबर। दरिया के किनारे पे कश्ती जलाने वाली कौम तुम ही हो। दुनिया को अंदाजे जिंदगी देने वाली कौम तुम ही हो। दुनिया को शऊर बंदगी देने वाली कौम तुम ही हो। दुनिया को निजाम जिंदगी देने वाली कौम तुम ही हो। हाँ, तुम वही हो जिनकी राहों में अगर पहाड़ आ गए हैं तो पहाड़ों को भी आपने रेजा रेजा किया है। जिनकी राहों के बीच में दरिया आ गया है तो बहरे जुल्मात में तुमने घोड़े दौड़ाए हैं। अपने माजी को देखो और अपने माजी को देखकर हाल को दुरुस्त करके अपने मुस्तकबिल की जो है वो इमारत को दुरुस्त करो। आप वही हो। आप गांजा पीने वाली कौम नहीं, आप शराब पीने वाली कौम नहीं, आप बोझ बनने वाली कौम नहीं, आप बेटी और बीवी की आबरू को खिलवाड़ करने वाली कौम नहीं, आप खुदकुशी करने वाली कौम नहीं। मुसलमानों, तुम खुदकुशी करने नहीं आए हो, तुम लोगों को जिंदगी देने आए हो। तुम मौत के भिखारी नहीं बल्कि तुम जिंदगी के सौदागर हो। आओ एक नई सुबह का आगाज करें और एक दूसरे को सहारा दें। मैं कहता हूं, अगर कोई खुदकुशी करने के लिए जा रहा है तो लोग मरने के बाद हमदर्दी करने की बजाय उससे लोग जीते जी हमदर्दी करें। किसी मुफक्किर ने कहा था, मरने के बाद तो सभी कांधा देते हैं, जिंदगी में किसी को कांधा दे दो ताकि वो खुदकुशी ना करे, ताकि वो तबाह ना हो, ताकि वो बर्बाद ना हो। आओ, हम वो कौम है दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आओ अपने माजी को देखो, मुस्तकबिल को बेहतर करो। गाने नहीं सुनना, गंदी फिल्में नहीं देखना, औरतों पे पाप की नजर नहीं डालना। एक सच्चे मुसलमान कैसे से जिंदगी गुजारें। आप कहते हैं मौलाना टेंशन बहुत है। मैं कहता हूं, टेंशन का इलाज जितना खूबसूरत इस्लाम ने दिया है उससे बेहतर किसी के पास नहीं है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब टेंशन हो जाए वुजू कर लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, सब टेंशन दूर हो जाएंगे। और एक बात, कितनी बड़ी मुसीबत आए, याद रखना, कितनी बड़ी मुसीबत आए, एक बात हमेशा सोचना, मुसीबत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है। कोई मुसीबत बड़ी नहीं है, मुसीबत बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है। अपने काम अल्लाह को सौंप दो, उस पर भरोसा करो, उस पर तवक्कुल करो। जो आदम को बिन माँ बाप के पैदा कर सकता है वो हमारी मुश्किलें दूर नहीं कर सकता। जो खैबर का किला किसी को एक हाथ से दरवाजा उखाड़ने की ताकत दे सकता है, और वो किसी कौन है? वही खातिमुल विलायत हमारा मौला अली है, जिसने 40 मन के दरवाजे को अपने दूसरे हाथ से उखाड़ करके ढाल बनाया और दुनिया को बता दिया, अगर अल्लाह ना चाहे तो आदमी तिनका नहीं हटा सकता, और अगर खुदा चाहे तो अली 40 मन का दरवाजा अकेले उखाड़ करके उसको ढाल बना सकता है। मुसीबत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है, उस पे अपनी भरोसा रखो, उसे काम सौंपो। एक गालिब ने कहा था, बहुत खूबसूरत बात कही थी। वो गालिब कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ, रंज से खूगर हुआ, रंज से खूगर हुआ तो घट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। रंज से खूगर हुआ तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। और इकबाल कहते हैं, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर
आसानियां हो, जिंदगी दुश्वार हो जाए और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अपना नशेमन इतना मजबूत बना लो कि बिजलियां गिरती रहे और खुद बेजार हो जाए, लेकिन आपका नशेमन कोई जला ना सके। इसलिए कि जिसके नशेमन पर खुदा व रसूल की मदद होगी उसको कौन जला सकता है, उसको कौन रुस्वा कर सकता है। और मेरे नबी ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तू कलमा पढ़ रहा है तो नबी कहने अल्लाह हमारे साथ है। रोजी का टेंशन हो, चना बेच लो। रोजी का टेंशन हो, छोटा मोटा काम कर लो। देखो, मेहनत करने में मत शर्माओ। जब हमारे नबी शाम की मंडी में खड़े होकर सामान बेच सकते हैं तो हमें मालेगांव के बाजार में खड़े होकर सब्जी बेचने में कौन सी शर्म है। चोर मत बनो, ताजिर बनो, बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो। हमारे यहां तो नफिल नमाज से अफजल रोजी कमाना है। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि बस मस्जिद में पड़े ही रहो, यही है दीन। नहीं, फारूक आजम ने अपने दौर में देखा, एक जवान मस्जिद में पड़ा रहता था। उससे पूछा, तो मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरा घर कैसे चलता है? क्योंकि मस्जिद तो पड़े रहने की जगह नहीं है ना। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, मस्जिद तो खड़े रहने की जगह है। कुरान करे क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अदब के साथ खड़े हो जाओ इबादत के लिए। मस्जिद पड़े रहने की नहीं, खड़े रहने की जगह है, और वो भी अदब के साथ। तो फारूक आजम ने पूछा कि तू मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का काम काज कैसे चलता है? उसने कहा, मेरा भाई सब कुछ करता है। तो तेरा भाई क्या करता है? कहा, वो बस नमाज पढ़ने आता है, फर्ज वाजिब पढ़ के चला जाता है, काम करता है, और मैं रात दिन मस्जिद में इबादत करता हूं। तो फरमाया, तुझसे बेहतर तेरा भाई है, तुझसे बेहतर तेरा भाई है, क्योंकि तू बोझ है और वो बोझ उठाने वाला है। बोझ मत बनो। मैं बस बात खत्म करने लगा था। एक बात कहता हूं, आप कहते हो ना लोग हमें मार रहे हैं, लोग हमें काट रहे हैं, लोग हमें जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती करें। मैंने कहा, जो कौम बोझ बनती है वो मारी जाती है। बोझ मत बनो, जरूरत बनो। लोगों पे बोझ, किसी पे भी, ना घर वालों पे, ना भाइयों पे, ना बच्चों पे बोझ मत बनो, सबकी जरूरत बनो। बोझ मारा ही जाता है और जरूरत पाली जाती है। उसको दो जुमलों में बस समझ लो, बात समझ में आएगी। घर जाके सोचना इस पर। देखो, मक्खी दो किस्म की होती है, एक मोहल्ले की मक्खी, एक शहद की मक्खी। ठीक, मोहल्ले की मक्खी को आप मारते हैं, क्यों? तुम्हारे खाने पे बैठती है, खा लेती है, मिठाई पे बैठती है, गंदा कर देती है, बीमारी फैलाती। ये है मोहल्ले की मक्खी, मारी जा रही है, बहुत मारी जा रही है। और एक है शहद की मक्खी, वो फार्म बनाकर पाली जा रही है। दोनों मक्खी, दोनों के पैर, दोनों के पर, दोनों की बिरादरी एक, अलग अलग बिरादरी नहीं है, दोनों मक्खी है। बल्कि ये मोहल्ले की मक्खी तो बड़ी भोली भाली है, काटती नहीं है। शहद की मक्खी तो दहशतगर्द है, ऐसा डंक मारती है कि डंक छोड़ के जाती है। उसकी दहशतगर्दी के बाद भी उसको लोग पाल रहे हैं फार्म डाल डाल के। तो हमने पूछा, लोगों ये भोली भाली को मारते हो, उस दहशतगर्द को पालते हो, तो लोग बताएंगे ये हम पे बोझ है, वो हमारी जरूरत है, क्योंकि ये हमारा खा जाती है और वो हमें खिलाती है। मतलब शहद की मक्खी हमें शहद फराहम करती है। तो लोगों का खाने वाले मत बनो, लोगों को खिलाने वाले बनो, लोगों पे बोझ मत बनो, लोगों का बोझ उठाने वाले बनो। जरूरत बन जाओ लोगों की। शहद की मक्खी और इस मक्खी में फर्क क्या है? ये जो मोहल्ले की मक्खी है गंदगी पे बैठती है, शहद की मक्खी गंदगी पे नहीं, फूलों पे बैठती है, फलों पे बैठती है। पता चला, गुनाह की गंदगी पे बैठना बंद कर दो और नेकी के फल और फूलों पे बैठना शुरू कर दो, लोग तुम्हारे मोहताज हो जाएंगे। आइए कल की सुबह का आगाज करें। जो लोग तो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और आज से पहले कोई गुनाह हुआ अल्लाह से माफ़ी मांगे। और हमारे यहाँ तो माफ़ी मांगने का तरीका आसान है, इस्तिग़फ़ार पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए। इसलिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें।